Hello everyone, welcome to EduTap. So today let's welcome Mr. Utkarsh Agrawal, who is with me, and I feel immense pleasure to announce that he has been recently selected as an RBI Grade B officer. So welcome to the channel, Mr. Utkarsh. Thank you, sir. Thank you. First of all, heartiest congratulations to you on becoming the RBI Grade B officer. Thank you, sir. So today, guys, we are going to discuss the whole journey of Mr. Utkarsh from starting the preparation to becoming the RBI Grade B officer. So, sir, let's start first of all with a brief introduction about your education background or the professional background, if any. Sir, I've completed my class 12th in from Gorakhpur city in Uttar Pradesh. Thereafter, I went to Delhi University to pursue BCom honors from Shri Ram College of Commerce. I passed out from the college in 2017. Uh, in the college itself, I completed the chartered accountancy up to the inter level. However, decided not to continue it further, and I decided to go for civil services exam. So straight out of college, I started preparing for civil services. And in the first attempt, I reached up to the main stage, but in the subsequent attempts, I could not clear the prelim stage, which was a major setback to me. And after those failures, I started looking for other equally good opportunities. And then I got to know about this RBI exam. Earlier, I was not even aware about it, and I researched about it. And in 2020, the exam did not happen, so that gave me a good amount of time to understand the exam, its demands, its past year questions, its papers, how it happens. But when the 2021 attempt happened, the pattern changed. So that was it. And this was my second attempt at the RBI exam. And for the past 2 years, I've been preparing completely solely for the RBI exam and for no other exam. I have been giving bank exams just for the sake of practice, but my focus has been to join the RBI. As you have mentioned that this was the second attempt in the Reserve Bank of India Grade B exam. So, can you tell us our experience about the learnings that you have got from the previous attempt that also helped you in clearing this year's exam successfully? Yes, sir. So one important point was the scorecard, the main scorecard which came last year. On seeing my scorecard, I could understand that I had performed reasonably well, and I missed the cutoff by only zero point 0.5 marks. And that too had happened when I had missed one 10-marker question and one 15-marker question completely because of poor time management. So my major learning for this year was to complete the paper, descriptive paper anyhow. Because in descriptive, if you are able to write anything, the if the word limit doesn't matter, but if you're able to write it, then at least whether it is being checked by a computer or a human, you have a possibility of getting some marks. But if the question itself is blank, you have not written anything, then there is almost no possibility of getting some marks. So my focus this year was to complete the descriptive papers in ESI, FM, and English. Last year, my time management was very poor because descriptive was introduced for the first time. So this year, my main focus was time management. So guys, kindly note down this point that time management is very important. It plays a very important role. As you can see here that last year, sir has missed just by 0.5 marks. I think I'm right, sir. So just Yes, sir. missing it by 0.5 marks. And now this year with the better time management, he was really able to clear the exam successfully. So as you have mentioned that earlier you started with the UPSC preparation and then you shifted towards the Reserve Bank of India Grade B officer exam. So as it has been a long journey, so there must have been some up and down in this journey. And can you tell our experience that how exactly you maintained your motivation levels? What were your stress busters that you used to use in order to get out of those tough times? So the journey has been very long. It has been almost 5 years, and it was full of challenges. Uh, I had several issues, like I faced adverse mental health. I faced clinical depression for a brief period, and I had major issues in sleeping. I could not get a proper sleep, good night sleep, and so these are a few challenges. And how did I overcome it? One was the complete support, both emotional and financial, of my family. Other was the support by my friends. Whenever I wanted, I could just talk to them, and they could give me a better perspective. Because when you're in a bad situation, you are just caught up in your own feedback loop of thinking negatively. But when you get to talk to your friends or other peers, they give you a better perspective, other perspective as to how you can think about your issue, and they also motivate you to some extent that you have the potential, and it is just a matter of time. And I think that's what uh, helped me to go through this journey. Other than that, self belief is very important.
Because if you don't believe that you can do it, then no one else can motivate you, no one else can help you. You have to believe that, okay, this time I've failed, I've not been able to secure a good, positive result, but next time with better performance, with improved with by improving my own mistakes, I can get a better result. So I think self belief and self confidence is the ultimate key. Other than that, these factors of family, friends are very helpful. And talking about stress busters, I just went to downloaded some movies, watched some movies, and I think one of the major good stress buster is just go to sleep. If you're going to sleep, then half of your problems will solve. And when you wake up, then you are in a fresh mind, and you can think on those issues in a better manner. So I think watching movies, listening songs, going for walks in the park or something. So these are a good ways to reduce your stress. Definitely a very good point. So challenges always come in the journey, but this is how you overcome those challenges basically makes your journey more beautiful. So very important thing, guys. This kind of self belief is also very important when you are preparing for such kind of competitive exam where there is a very high competition. So sir, let's start with the phase one preparation. So when I talk about the phase one preparation, as per you, what was the low hanging fruit? What was your most scoring section in among all the four sections which were being asked in the phase one preparation? So firstly, I would like to tell that in the last 2 years, I have given the prelims exam of most bank exams like IBPS PO, SBI PO, RRB PO, and to the surprise, I have not been able to clear most of them, the prelim stage. Reason being, the prelims exam of banking exams, they require speed. You need to solve 100 questions in 60 minutes. But the prelims exam of RBI is a bit different. It requires not speed, but right selection of questions. So in order to clear the cutoff. So I'm an example where I've not been able to clear most of my prelims in the SBI PO, IBPS PO, but I've been able to clear the prelims of RBI exam both the times. And my scores have been, last year I scored 91 in the phase one. This year I scored 83 in the phase one. So my scores have been like above 20 marks above the cutoff, which is a safe score. And talking about how I prepared for it, I think the lowest hanging fruit in this phase one thing is GA, general awareness. Because first of all, it has the highest weightage, 80 out of 200 marks. And secondly, preparing GA not only helps you in phase one, but it also helps you in phase two and the interview stage. So I think GA should be given disproportionately more importance than other subjects, because quants, reasoning, they are only a part in the phase one, which is a qualifying stage. The marks of it do not count in your final selection. So this was my strategy, to focus more on GA and just to barely clear the sectional cutoff of quants and reasoning. So this was my strategy for GA. So, how did you prepare for the current affairs? As we all know that there are a lot of facts and figures that you are required to remember, retain on the exam day to successfully attempt those questions. Yes, sir. So my current affairs strategy was quite comprehensive, because I was a full-time aspirant, so I could afford to give the time that current affairs requires. So one other the my sources for general awareness for phase one and phase two, they were in a way integrated. They were not separated, and I used to prepare daily notes from Affairs Cloud website on a daily basis. It used to take me 45 minutes to 1 hour, about depending on the importance of the news. And I used to follow newspaper every day. And because I was a UPSC aspirant, so it was a very usual thing for me. So newspaper was a must in the morning, but don't devote too much time to it. Half an hour to 45 minutes is a good enough time. It not only helps you in GA, but also helps you in English, preparing the English section. So one source is newspaper, other is Affairs Cloud magazine, Affairs Cloud website. I did it for every day on a daily basis, because if you don't do it on a monthly basis, it becomes too bulky and very difficult to retain. But doing it on a daily basis helps you to break it into small parts and then retain it in a better manner. Other sources were government schemes, because the phase one and phase two, although they are separate exams, but the time gap between phase one and phase two is so less, 20-25 days, that in that time you can almost do nothing. You just revision, just answer writing practice. So ideally, phase two preparation must be done before phase one exam. So that should be the ideal.
And also few questions of phase 2 syllabus are being asked in the phase 1 exam also. Like this year, I remember there was some question on memorandum of association, articles of association, something related to those lines. So I think out of 80 questions, 2 or 3 questions are there from phase 2 exam also. So phase 2 syllabus also helps. So government schemes I did before the phase 1, uh, then PIB 6 months, and RBI website 6 months, because a lot of questions are coming directly from PIB and a lot of questions are coming from RBI website. Uh, Other than that, budget speech, the timing of budget speech is very important because the exam happens in March or April, and the budget speech occurs on 1st February. So the timing of the budget speech is such that it becomes very important. Last year, I remember there were 6 to 7 questions directly from the budget speech. This year, there were, I think, 3 or 4 questions, but so the budget speech becomes very important. Uh, Economic survey also comes in the same time, but I would not suggest to read the whole survey because it is not a good return on investment. So you can read any coaching's compilation on economic survey. That would serve your purpose. And other than that, one PDF that we usually are recommended to read for the interview stage, that is the RBI functions and workings PDF. I would suggest you to read it before phase 1. Right now you can read it. It's like a 200-page document which can be completed in 15-20 days. It's a very beautiful document, and it helps you get a better understanding of what is RBI, how it functions, what is monetary policy, what are the various departments. So it gives a very good perspective. And other than that, it can also help you in phase 1 exam. For example, if I give you an example, this year there was a question, when was the Federal Reserve set up in the phase 1 exam? And if you open this document, RBI functions and workings document, on the chapter 1, page 1, it is clearly written it was set up in 1913. So if you have just given a cursory glance, and it was given in the context of the evolution of central banks, so how central banks evolved. So if you have read that PDF, so it will give you not only a better perspective but also some good facts and figures which you can use to get better scores in the G exam. Definitely. And can you tell us about the importance of solving MCQs for the current affairs part? Yes, solving MCQs is important because once you have read it, uh, ultimately what is being checked in the exam is whether you're able to recall it at the right time or not. So just remembering it is not important. Marking the right option is important, and for that you need to practice MCQs. MCQs can be practiced from any source. There are a plethora of channels on YouTube which are giving you daily MCQs. That depends on you. But I think practicing MCQs is very important. And another tip I would like to give for general awareness is that people ask me that general awareness is full of so much data facts. So I would like to say that last 3 months general awareness is most important because most of the questions come from there only, and everything you need to know everything about last 3 months. For previous months you can ignore some things, but last 3 months is sacrosanct. So what I used to do is like last this year my exam was in the first shift. So the exam was at 9 a.m. So I woke up at around 2 a.m. in the night, and I started reading from 2 a.m. till 8 a.m. 8:30 a.m. I was just reading current affairs GA, because you cannot do anything in quants, you cannot do anything in reasoning, you cannot do anything in English. Whatever you have to do in GA. So for the 5 to 6 hours just before the exam, I was only reading general awareness. That helped me because there's a concept of short-term memory. So I was just putting those figures in my short-term memory, because if I enter the exam in the phase 1 and the first section is GA, if I'm seeing the question and I have to just recall it, because if I've just studied it 5 to 6 hours before, then it is there in my memory. The facts, the figures, everything is there. So you just need to recognize the correct option and recall it. You don't need to even remember the whole thing. You just need to recall it at the right time on seeing the question. So that helped me a lot in getting good marks. This year I scored 48 marks in GA, which I think is a good enough score and helps me clear the overall cutoff. And so GA is a blessing for me in that sense. Quite good. So guys, kindly note down that the timeline is very important. The last 3 months of the current affairs, even if you will analyze the previous year papers, you will see that the last 3 months are really very important when I talk about the general awareness section of the RBI Grade B Phase 1 exam. So apart from that, let's talk about other 3 sections as well, about quant, reasoning, and English. That how did you prepare for these 3 sections? You prepared through the mocks, or you just revise them topic wise? So what exactly was your strategy for these 3 sections? So for English, I think no particular book or no particular reading is required, since you are reading so much material on a daily basis, newspapers, ESI, FM. So I think English gets prepared automatically. You just need to
you need to have a sense of how English is sounding, how it functions, and that is I think it gets through when you keep reading on a daily basis. Then so don't need to don't need to mug up any grammar rules, anything. You just need to have a common sense and apply it, and also you need to have a bit of speed reading, because this year I think the paper of English was a bit lengthy, because every year I'm able to attempt all the 30 questions, but this year I was not able to read all the questions, because I think the paper was a bit lengthy in English. So I think speed reading is also a bit required, so that you are able to go through the complete paper and then answer the questions. So for English, no particular book, nothing is required. Just keep reading what you are reading, and then practice. You can practice a sectional mocks or something. For quants and reasoning, I would say कि, sir, it was not very strong for me. So I based on the previous year question analysis, I identified the topics which are required, and EduTap has a video on it. Sir has identified the topics which are highly scoring in both quants and in reasoning, and I used to practice them only multiple times. My sources were one was the EduTap YouTube channel, because the quants faculty of EduTap has prepared this time they prepare they also solve the past year questions which have come, and they also used to practice questions on those channels. So that was one source, EduTap channel. Other than that, there was Merit Shine YouTube channel. They have a playlist of SBI PO 2017, but it is still very relevant, and I think it's a good source to prepare. Other than that, for those who do not have any course, they can use a YouTube channel called Career Definer. That person has prepared a topic-wise playlist for every topic of quants. So I think these are a good source to prepare. And talking about, sir, strategy. So I had purchased the mock of practice mock, but I was very scared of giving mocks, because I used to fear that if I get low scores, I'll get demotivated. Then I used to, so I gave only one mock for this exam. Okay, Only so one. you give only just a single mock for the exam. Yes, sir. And that too was 1 week before the phase one. I just gave a mock just to check my preparation and just to see that I'm able to sit for 2 hours and I'm able to perform in those 2 hours. And another important thing of mocks is to simulate the environment, the exam environment. As in, if you're sitting for 2 hours, then are you able to hold your nerves for 2 hours? And another important thing which I've observed is that का एक सेक्शन खराब हो जाता है, तो वो उस सेक्शन को लेके बैठ जाते हैं एग्जाम हॉल में, और उसका रिपल इफेक्ट पड़ता है अगले सेक्शन पे। तो एग्जाम हॉल में ये मत सोचो कि ये सेक्शन खराब हो गया, यहाँ पे कट ऑफ नहीं मीट हो रही है। एग्जाम हॉल में हर सेक्शन को इंडिविजुअल एग्जाम की तरह ट्रीट करो, एंड उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर कॉन्स खराब हो गया, अगर रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग सेकंड सेक्शन जीए के बाद रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग अगर खराब हो गया तो सही मतलब नहीं कि आप कॉन्स भी खराब कर दो अपना। हो सकता है रीजनिंग का सेक्शन कट ऑफ ही इतना लो हो जाए कि आपको मिल जाए, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो जाए, लेकिन एग्जाम हॉल में हार नहीं माननी है कि यार ये तो खत्म हो गया सब कुछ, मतलब दिस इज नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट इट। तो एग्जाम हॉल में फाइट करना है, एंड हर सेक्शन को एक इंडिविजुअल एग्जाम की तरह लेना है। एक सेक्शन का खराब सेक्शन का रिपल इफेक्ट दूसरे पे आने नहीं देना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने तो सर एक ही मॉक दिया था, एंड फॉर्चुनेटली मेरे उसमें 99.76 परसेंटाइल आ गए। तो मैंने कहा कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। एंड फॉर practicing questions, I used only YouTube. I just used to search on YouTube any topic like reverse syllogism, and so many videos used to come. I used to open any video and just practice. So Used to practice from there, because this is a counterintuitive strategy. Many people say that YouTube is not a good source to practice, but I used it because if I'm not able to understand a question, how to go about it, then the teacher is there itself teaching me how to go about this question, and I'm understanding that question. And if that type of question comes in the exam, I'll be able to solve it. So I think YouTube is a good enough source to practice. There are plethora of questions. There are free channels. Everything is available for free. You just need to have the smart work to go about searching for it. basically, it is basically the efficient use of the resources which are Yes, sir. available. Definitely. And one point is very important. We have always heard from so many aspirants that कि सर मेरा पहला सेक्शन सही नहीं हुआ तो बाकी सब सेक्शन मेरे खराब हो गए. So see, individually हर एक सेक्शन को लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because if it is difficult for everyone. अगर कोई एक सेक्शन खराब हुआ है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बाकी के जो 3 सेक्शंस है यू शुड फोकस ऑन दैट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज. तो उन चीजों पे बहुत जरूरी है कि इस बात को ध्यान रखा जाए. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फेज 2, व्हिच इज वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
part of the whole recruitment cycle. So when I talk about the phase two, we all know that the descriptive questions have basically been introduced. The pattern of the exam has changed. So the rules of the game has been changed. Now, what will you suggest to our aspirants that how to prepare for the descriptive answers? What should be the good structure of the descriptive answer? And what are the good elements of a good descriptive answer? So talking about descriptive, I had written one mains in UPSC. So for that, I had joined a test series back then, and I practiced a lot of answer writing, and that was the foundation which helped me in this exam, in this RBI stage. But for beginners or freshers, what I would say is that first, don't just directly jump to answer writing. You cannot write an answer without having good content, without having a good understanding, because what will you write if you don't have the content? So first, have a good coverage of syllabus. Don't go for 100% syllabus coverage, because that is a myth. Try to have a good amount coverage of syllabus. Like you can start with management, try to study all the topics of management, or try to even study like a portion of management. Say you start with personality, you study three topics of personality. What is personality? What are the factors affecting personality? And what are the big five model of personality? You study these three topics, and then you prepare a question on your own, that what explain the big five model of personality, and you try to write it on your own in notepad or wordpad. So that is a way to practice. Other than that, you can have a peer group of two or three. Don't make a very large group, because the larger the group, the कुछ फायदा नहीं होता उसका. तो दो तीन लोगों को एक एस्पिरेंट्स का सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट्स का ग्रुप बनाओ. उसमें ट्राई करो कि डेली बेसिस पे ऑल्टरनेट डे पे लिखने की प्रैक्टिस करो. सो दैट विल गिव यू एन अकाउंटेबिलिटी. जब पार्टनर्स होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि उसने लिखा है तो मुझे भी लिखना है. तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो बहुत ही अच्छा है कि खुद से लिख रहे हैं, खुद ही चेक कर रहे हैं. और नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी रख लो. और ये भी नहीं है तो फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या कोई कोचिंग में इफ दे प्रोवाइड मेंटरशिप, सो यू कैन गो फॉर दैट थिंग. एंड डिस्क्रिप्टिव से प्रैक्टिस करने का मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स है सिलेबस. जो भी सिलेबस में लिखा है, दैट इज एवरी कीवर्ड इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, एथिक्स के सिलेबस में लिखा हुआ है व्हाई एथिकल प्रॉब्लम्स अकर इन बिजनेस. तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है एग्जाम में. अगर Definitely. अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंस, तो अगले साल डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. 600 वर्ड्स में लिखो. तो आपको क्वेश्चन सर्च करने की जरूरत ही नहीं है. जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, एज इट इज क्वेश्चन आया था एग्जाम में. तो आपको अपना दिमाग लगाने ही नहीं है. जो सिलेबस में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लो, उसी को क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस कर लो, उसी को क्वेश्चन में फ्रेम कर लो, एंड दैट इज योर क्वेश्चन. And एंड at टॉकिंग the अबाउट end, स्ट्रक्चरिंग सर, sorry sir, talking about structuring, there is a basic structure which we follow, intro, body, conclusion. तो इससे अच्छा क्या होता है ना, कि अगर आपका 600 वर्ड का भी क्वेश्चन है, तो जब आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो तो आपको लगने लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है. क्योंकि 600 वर्ड को अगर आपने आईबीसी में ब्रेक डाउन कर लिया, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रो 50 वर्ड्स का, बॉडी 400 वर्ड्स 450 वर्ड्स की, एंड कंक्लूजन 50 वर्ड्स का. तो आपका ये 600 वर्ड आराम से बन गया. इंट्रो में आपको बेसिकली उसको डिफाइन करना है, या उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, या कोई करंट कॉन्टेक्स्ट हो. आई थिंक डेफिनेशन इज अ गुड वे टू. जैसे कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दो, या फिर उसका जो उसके जो रिलेटेड चीजें वो लिख दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म वाज कॉइन्ड बाय सो एंड सो, इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल गोलमैन. सो आप ये चीज करके एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. देन यू कैन कम टू द बॉडी पार्ट, एंड बॉडी पार्ट में आप ब्रेक डाउन करो, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स में करके अच्छे से ब्रेक डाउन करो, एंड ट्राई टू राइट द बॉडी इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट. बिकॉज पॉइंट वाइज से क्या होता है ना, कि विजिबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे कि टू गिव यू एन एग्जांपल, दिस ईयर दिस क्वेश्चन कम कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ कैन यू ओवरकम इट. तो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कि एनीथिंग व्हिच डिस्टॉर्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हिंडर्स द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, दैट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. ये बस 3 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया, अपना इंट्रोडक्शन हो गया. फिर जब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे आए तो पॉइंट वाइज लिखा, एंड पॉइंट के लिए मैं 1 2 3 4 नहीं लिखता था, मैं हाइफन लगा देता था, डैश. एंड लास्ट ईयर भी मैंने अपनाया था, दिस ईयर भी अपनाया, तो मेरे को पता चल गया कि दिस इज एक्सेप्टेबल, कि डोंट नीड टू राइट 1 फिर ब्रैकेट में, फिर 2 फिर ब्रैकेट में, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें भी. सो अगर आप जस्ट हाइफन लगा के अपना पॉइंट लिख दे रहे हो कि हाइफन सेमांटिक बैरियर, हाइफन कल्चरल बैरियर, हाइफन, तो दैट इज गुड इनफ, गुड वे टू गो टू राइट इन पॉइंट्स. लोग पूछते हैं कि सर बुलेट बुलेट तो आता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही फॉर्मेट इंटरफेस बहुत ही बेसिक सा रहता है. तो हाइफन या डैश इज अ गुड वे टू गेट टू राइट अ पॉइंट, एंड ऐसे करके आप कर सकते हो. एंड सिमिलरली कंक्लूजन में एक अच्छा सा पॉजिटिव कंक्लूजन, या फिर कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन, कि अच्छा ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर हम ये कर देंगे
तो ये बैरियर्स ओवरकम हो जाएंगे और कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा और टू वे हो जाएगा। तो पॉजिटिव अच्छा सा कंक्लूजन कर दो, एंड दैट इज, मतलब आप कोई भी आंसर लिख सकते हो 400 वर्ड 600 वर्ड। जब आप ब्रेक डाउन कर लेते हो तो लिखना बहुत आसान हो जाता है और दिमाग में स्ट्रक्चरिंग बैठ जाती है कि ऐसे करना है। Guys, kindly note down these points as these are really going to help you in your journey to becoming RBA Grade B officer next year. So, apart from that, there's one more important point that, as we all know, that the duration of the exam is about 5.5 hours. So, how can one get acclimatized to sitting for those long hours? सर, एक्लेमेटाइज करने का आई थिंक एक अच्छा तरीका है कि जब आप ऑन अ डे टू डे बेसिस पढ़ाई कर रहे हो तो छोटे सेशंस मत रखो। ट्राई टू हैव अ सेशन ऑफ 2.5 आवर और 3 आवर्स इफ पॉसिबल। 2 आवर्स का तो मिनिमम रखो ही रखो। क्योंकि जब आप हैबिचुअल हो जाते हो ना बैठने के लिए 2 घंटा एक जगह पे बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो वहां पे बैठना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो 90 मिनट्स, आई थिंक वहां पे भी 2 आवर्स के सेशन हो रहे हैं। हाफ एन आवर फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आपकी 2 आवर की एक सिटिंग है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दिक्कत थोड़ी सी आती है जब लास्ट पेपर चल रहा होता है ईएसआई और इंग्लिश का, जहाँ पे पहले आपको 2 घंटे बैठने हैं ईएसआई के लिए और फिर बिना ब्रेक के तुरंत इंग्लिश शुरू हो जाता है और 1.5 घंटे फिर वहां बैठने। तो वहां पे थोड़ा सा स्टैमिना चाहिए 3.5 घंटे बैठने का। बट आई थिंक अगर आप ऑन अ अपनी डेली स्टडी शेड्यूल में ऐसा इंट्रोड्यूस करते हो कि आप अच्छी सेटिंग रखते हो अपनी, सो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। Very good point. So now, I think, guys, these points which are being quoted by Utkarshji, they are very much clear to all of you. Now let's move on to the phase two preparation. So, as per you, what exactly was the low-hanging fruit when I talk about the finance and management section of the RB Grade B exam? सर, वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, कि जो ब्रेक होता है ना एफएम पेपर के बाद, उसमें पेपर डिस्कस करने के लिए मत जाओ। उसमें अपने आप को रिजुविनेट करो, अपने आप को रिलैक्स करो। मैंने क्या किया था, मेरा लखनऊ सेंटर था, तो मैंने जो एग्जाम सेंटर था लास्ट ईयर भी मैंने क्या किया था कि उससे 500 मीटर दूर एक होटल ले लिया था। तो मैं ब्रेक में गया होटल, मैं नहा लिया, फिर से सुबह नहा के गया था, फिर से मैं नहा लिया, ताकि माइंड फ्रेश रहे, बॉडी काम रहे। एंड नहाने के बाद लाइट मील कर लिया था, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया था। एक पेपर पे जो रिवीजन पॉइंट्स थे वो नोट करके ले गया था, तो ऑलरेडी बस पता था कि यही रिवाइज करना है। वो रिवीजन हो गया, माइंड बहुत काम था। तो सेकंड शिफ्ट के लिए आप जो 3.5 घंटे वाला मैराथन होने वाला है उसके लिए आप बेटर प्रिपेयर हो सकते हो। तो जो ब्रेक है ना उसको यूटिलाइज करो अच्छे से, उसमें अपने आप को स्ट्रेस मत करो कि इससे पूछ रहे हैं, दोस्त से बात कर ली, घर पे बात कर ली, क्या रहा पेपर, कैसा रहा, क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। उस समय रिलैक्स करो। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो पूरा दिन पूरे महीने रहेंगे आपके पास पेपर डिस्कस करने के लिए। सो ब्रेक को बहुत अच्छे यूटिलाइज करना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। Very honest point mentioned by you here. सर, So, कमिंग टू ये क्वेश्चन कि yes. फेज टू का क्या सीन है, तो सर फेज टू में मैं कहूंगा कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फेज टू ही सब कुछ है। मतलब अपना सब कुछ फेज टू को दे दो। मैं आपको थोड़ा डेटा देता हूँ इसके लिए। जैसे इस बार कट ऑफ गया था फेज टू का 171, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स है फेज टू में इस बार 205 नंबर। तो इट इज अबाउट 34 मार्क्स अबव द फेज टू कट ऑफ। एंड जिसके 205 मार्क्स आए हैं, ही गॉट ओनली 40 मार्क्स इन इंटरव्यू, and still he managed to clear the final cutoff and make it to the final list. So this was possible because he scored 34 marks above the phase 2 cutoff. That's why even if he got 40 marks in the interview, he still managed to get a final result. So लोग मेरे को मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि भैया मेरा गैप है, मेरा ये है, तो मैं फेज टू क्लियर कर भी लूंगा तो इंटरव्यू में मेरे को कम नंबर देंगे, तो फायदा क्या पढ़ने का। मैं कहता हूं कि आप फेज टू पे फोकस करो ना, जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप फोकस करो। इंटरव्यू स्टेज तो बात की बात है। अभी आप फेज टू में इतना अच्छा मेहनत करो, इतने अच्छे से पेपर लिखो, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब कुछ, कि आपके फेज टू कट ऑफ से 20 25 30 नंबर ऊपर आ रहे हो, और फिर इंटरव्यू स्टेज आपके लिए रेलिवेंट ही ना हो जाए। क्योंकि वो आपके हाथ में उतना नहीं है, वो सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो वो उनके हाथ में है। लेकिन वहां पे भी अगर आपको 40 नंबर 45 नंबर भी दे रहे हैं, इवन देन यू आर एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, बिकॉज आपने फेज टू किया है। तो दैट इज माय सजेशन कि फेज टू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मेन से मेरे को 20 नंबर 30 नंबर ऊपर लाने हैं। तो अगर ये माइंडसेट से जाओगे आप, देन यू विल डेफिनेटली मेक इट टू द फाइनलिस्ट, एंड इंटरव्यू का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। Very good point. Actually, we have to focus on the controllables. So just control the controllables and leave the rest of the things, because when interview will also be there, then you have to prepare for that. तो उसको थोड़ा साइड में रखेंगे and then just focus on the present thing, that what exactly you are presently on your hands. Very good point here. So now when I talk about the phase two, about the finance and management. So what exactly was your source of preparation?
And what were the most important areas in the finance and management section? So please tell our aspirants about that. सर मेरे हिसाब से पूरे फेज 2 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग और लो हैंगिंग फ्रूट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। पहली चीज तो वो ज्यादातर स्टैटिक है, अनलाइक ईएसआई जहाँ पे बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेशन है। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में इस बार हाईएस्ट स्कोर गया 82 आउट ऑफ 100। मतलब 82 आउट ऑफ 100 इज अ वेरी मतलब एक्सेलेंट स्कोर। तो अगर आपके एक सब्जेक्ट में 82 आ रहे हैं, तो अगर दूसरे सब्जेक्ट में थोड़े से कम भी आ जा रहे हैं ईएसआई में जो डिफिकल्ट आता है, तो तब भी आप आराम से फेज 2 या इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। सो एफएम में बहुत ज्यादा फोकस करो। अगर मेरे को प्रायोरिटी देनी होगी कि कितना फोकस करना है, तो सबसे ज्यादा फोकस करो एफएम पे, फिर फोकस करो इंग्लिश पे, फिर फोकस करो ईएसआई पे। बिकॉज ये एफएम और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा वो दोगे, एफर्ट डालोगे, जो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कि एफर्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, तो जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे एफएम में और इंग्लिश में, मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस अच्छे आने की और रिजल्ट अच्छे आने की। लेकिन ईएसआई का थोड़ा इशू ये है कि मतलब एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है और कुछ भी पूछ ले रहे हैं और बहुत ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड है, तो उतना फैक्ट्स दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ईएसआई प्रिपेयर ही मत करो, प्रिपेयर करो बट अप टू अ सर्टेन लेवल, एंड उसके बाद सोचो कि मेरे को इसमें इतना ही स्कोर करना है एंड मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स निकालने इंग्लिश से, एक्स्ट्रा मार्क्स और निकालने एफएम से। सो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास बर्डन नहीं आएगा ईएसआई का। नहीं तो लोग अभी से इतना बर्डन बना ले रहे हैं ईएसआई को कि अभी से बहुत सारा मटेरियल ले ले रहे हैं, सारे डेटा याद कर रहे हैं, तो दिमागी तो है, कितना आप याद रख पाओगे। सो दैट इज माई सजेशन। टॉकिंग अबाउट सर एफएम, एफएम में मैं कहूंगा कि फाइनेंस और मैनेजमेंट में पहली चीज तो ये कि वो फाइनेंस नहीं है, वो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो गया है। तो आई थिंक नोटिफिकेशन में कुछ चेंज किया इस बार, एक वर्ड ऐड कर दिया जनरल, क्योंकि वो फाइनेंस है ही नहीं। मतलब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेरे को पता है कि फाइनेंस ये नहीं है। दिस इज वेरी जनरल थिंग्स, मतलब कॉमन चीजें हैं एक्सेप्ट 2 और 3 टॉपिक्स लाइक डेरिवेटिव्स एंड बॉन्ड्स। बाकी चीज बहुत कॉमन है, इन्फ्लेशन लिखा है, बजट लिखा है, फिनटेक लिखा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लिखा है, रेगुलेटर्स लिखा है। सो आई थिंक दीज आर वेरी जनरल टॉपिक्स, दीज आर नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस। सो बहुत ही जनरल फाइनेंस है। तो जो भी नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हैं, तो पहले तो आप डरो मत कि फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस नहीं पढ़ना है आपको, आपको बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी है, जो कि पब्लिक फाइनेंस हो सकता है या जनरल फाइनेंस हो सकता है। सो डरो मत उससे। तो एंड अगर फाइनेंस और मैनेजमेंट में देखना है, तो आई वुड गिव मच वेटेज टू मैनेजमेंट सर, क्योंकि मैनेजमेंट स्टैटिक है और मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे इस बार मैंने डिस्क्रिप्टिव में 4 में से 3 क्वेश्चन मैनेजमेंट के किए एंड केवल एक क्वेश्चन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला किया। तो अगर 4 में से 3 आप मैनेजमेंट से कर रहे हो, तो उतना ही टाइम आपको देना चाहिए मैनेजमेंट में। एंड सोर्सेज की बात करूं सर, तो सोर्सेज के लिए मैंने कोचिंग मटेरियल रेफर किया फाइनेंस और मैनेजमेंट को रेफर करने के लिए, एंड जहां पे भी कुछ नहीं समझ में आता था उनके वीडियोस देख लिए। एंड अगर कुछ और कंटेंट वैल्यू एडिशन चाहिए, तो कोचिंग मटेरियल में गया या फिर गूगल कर लिया, या यूट्यूब पे चला गया। तो मतलब देर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज टू प्रिपेयर फाइनेंस मैनेजमेंट। एंड एक एडिशनल सोर्स में रेफर सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को। नोटिफिकेशन में एक बुक लिखी हुई है एसपी रॉबिन्स की बुक, एसपी रॉबिन्स की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक, दैट आई वुड रिकमेंड। क्योंकि इस साल जितना मेरे को याद है कि एक 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली उस बुक से आया हुआ है। सो और जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं एफएम में खासतौर से, वो काफी एप्लीकेशन ओरिएंटेड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट कर रहे हैं आपकी, कि केवल रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। आप वो जो स्टोरी दी है कि मिस्टर राम इज वर्किंग इन अ कंपनी, ही लीव्स द कंपनी टू फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि एसपी रॉबिन्स की बुक आप पढ़ सकते हो। लेकिन उस बुक को आप बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ना, क्योंकि बुक थोड़ी मोटी है, वो एमबीए के लिए बनाई गई है बुक। तो आप बस उसको सिलेबस वाइज पढ़ना, तो सिलेबस वाइज आप करोगे तो आपको 6 या 7 चैप्टर मिलेंगे, वो आप अच्छे से कर लेना। जैसे कि उसमें परसेप्शन चैप्टर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब इतना अच्छे से तो मेरे को कहीं नहीं मिला। इतना बढ़िया से उसने एक्सप्लेन किया है, 10 से 15 तरह के परसेप्चुअल एरर्स लिखे हुए हैं, और उसमें से कोई भी परसेप्चुअल एरर आपके एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर के लिए। तो अगर आप उसको उस बुक को पढ़ते हो, तो एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, एंड फिर आप ऑब्जेक्टिव भी अच्छा कर पाओगे, और अगर वही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, तो वहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। So, sir, this was my strategy for FM. Any topic that you would like to mention in the finance and management that are a must do topic? सर मैं कहूंगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो। जैसे 2 साल के अभी आपको मिल जाएंगे 21 22 के, और आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एंड फिर आप देखो कि वो पूछे जा चुके हैं तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो ट्राई टू फोकस ऑन द अदर टॉपिक्स। जैसे कि मैं कहूंगा कि अभी तक जो मैनेजमेंट का इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, वो टॉपिक अभी तक नहीं आया है कहीं पे भी। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगले साल एक 600 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट
या फिर शॉर्ट नोट्स की क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल, सिस्टम्स अप्रोच, इस पे शॉर्ट नोट टाइप का आ सकता है। तो ये मैनेजमेंट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मोटिवेशन थ्योरीज पे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो वो एक एरिया रह गया है। और लीडरशिप पे लास्ट ईयर एक आया था ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल पे, लेकिन अभी कंटिजेंसी थ्योरीज में और बिहेवियरल थ्योरीज में नहीं घुसे हैं। तो आई थिंक कि ये तीन टॉपिक, मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। लेकिन जो शॉर्ट नोट वर्ड है, जो शॉर्ट नोट के टॉपिक जैसे नर्स थ्योरी, तो मैं अच्छा शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके गया था कि नर्स थ्योरी को अगर शॉर्ट नोट आता है तो उस पर मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ले सकूं। क्योंकि अगर आपको कोई भी टॉपिक को लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, तो उसको आपको मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से लिखना होगा। तो अगर नर्स थ्योरी लिखना है तो मैं नर्स थ्योरी का मीनिंग लिखूंगा, किसने प्रपोज किया, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन क्या है, एंड फिर नर्स थ्योरी एग्जांपल्स दूंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है, गवर्नमेंट में यूज होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। सो ऐसा करके किसी भी शॉर्ट नोट को लिखना हो तो मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से लिखो, तो नंबर मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं और वर्ड लिमिट कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। आपने अगर 600 वर्ड को 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट ऑन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो मतलब दैट इज माय स्ट्रैटेजी। One more question in between that most of the time students have a question that do we must stick to the word limit, or we can just can be short of words like 90%, 95%. सर आई थिंक कि किस पैटर्न्स पे, किस बेसिस पे, पैरामीटर्स पे चेक हो रहे हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वो वर्ड लिमिट कह रहे हैं तो ट्राई टू अधेयर टू द वर्ड लिमिट। जैसे कि इस साल मैंने ईएसआई में भी और एफएम में भी 1800 टू 1900 वर्ड लिख पाया मैं, बिकॉज एक तो ये था दिमाग में कि पेपर कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से फिर टाइम मैनेजमेंट हुआ, और उसके वो हो पाया क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी। जब प्रिपरेशन अच्छी रहती है, नोट्स अच्छे बने होते हैं, तो आप अच्छे से लिख पाते हो इन द गिवन टाइम। तो आई थिंक कि वर्ड लिमिट तो ट्राई करो, 2000 वर्ड तो करना मुश्किल है, बट 1800 टू 19 वर्ड्स आप ट्राई कर सकते हो करना। तो अगर 600 वर्ड का है तो ट्राई टू राइट अबव 500 टू 550। अगर 400 वर्ड का है तो ट्राई टू राइट अबव 350। तो एक डायमेंशन आपका अच्छा हो जाएगा कि वर्ड लिमिट तो मैंने अच्छी लिखी है। तो अगर कंप्यूटर भी चेक करता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार पेपर बहुत जल्दी चेक हुए, तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर से चेकिंग हुई होगी। तो अगर कंप्यूटर भी चेक करता है और उसमें कोई एल्गोरिदम दी हुई है कि वर्ड लिमिट इतनी हो तो इतने नंबर देना, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो वर्ड लिमिट ट्राई करो अधेयर करने की। Definitely. Now talking about the importance of RBI notifications in the finance and management section. सर मैं स्पेसिफिकली नोटिफिकेशंस की बात नहीं करूंगा, मैं आरबीआई वेबसाइट की बात करूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस में काफी चीज टेक्निकल हो जाती हैं या उनके डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड है। जैसे कि अभी कल ही मैं पढ़ रहा था तो यूएन का कुछ आया हुआ है, तो अब वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अलकायदा का कुछ आया हुआ है वेबसाइट पे आरबीआई के, तो अलकायदा से क्या कर रहा है आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है या जो जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक सीबीडीसी पे कुछ बात हो रही है, कंसेप्ट नोट आया तो वो पढ़ो आप। सिमिलरली कोई दक्ष दक्ष का सिस्टम लॉन्च हुआ है तो वो पढ़ो आप। तो जो नई नई चीजें आ रही हैं, तो मैंने तो मोस्टली जो व्हाट्स न्यू सेक्शन होता है होम पेज पे, उस पे मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक नजर रखता था कि क्या कुछ नया आ रहा है, तो व्हाट्स न्यू सेक्शन था। अदर देन दैट सर मैं एफएक्यूज नहीं पढ़ा, क्योंकि एफएक्यूज बहुत वाइड थे, तो उस पर मैंने नहीं देखा। एंड नोटिफिकेशंस में भी सिलेक्टिव नोटिफिकेशंस जो मेरे को लगे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। आरबीआई ने आज इस बैंक पे पेनल्टी लगा दी, आज उस बैंक पे पेनल्टी लगा दी। सो दीज आर वेरी फैक्चुअल, वेरी बेसिक चीजें, ये नहीं पढ़नी आपको। कोई कंसेप्चुअल कुछ अच्छा आ रहा है तो वहां से पढ़ सकते हो, एंड अगर वहां पे कुछ भी डेटा या फिगर दी हुई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया था, तो उसमें इतनी सारी फिगर्स दी हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट में होगा तो सब्सिडी इतनी परसेंट होगी, बाकी जगह इतनी तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 1 के लिए भी, फेज 2 के लिए भी। तो कहीं पे भी डेटा दिख रहा है या कोई शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दिख रहा है, जैसे कि दक्ष आया, तो अगर दक्ष का फुल फॉर्म है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों पे नाक रखो, एंड सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता। एंड आई वुड से सर कि वन थिंग कि कभी भी परफेक्शन की तरफ मत जाओ। लोग परफेक्शन के चक्कर में मतलब परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड, तो आप गुड इनफ रखो। परफेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बेस्ट नोट्स बना लूंगा, मैं बेस्ट गवर्नमेंट की सब कुछ बेस्ट कर लूंगा, बेस्ट नहीं पॉसिबल है। एग्जाम्स कर क्लियर करने हैं, तो अबव एवरेज गुड इनफ रखो, उससे हो जाएगा। Very good point. So now let's move on to the economics and social issue section. So please tell our students about the what exactly you think is more important, the static part in the ESI part or the current affairs, which plays a more important role in ESI section. तो मेरे हिसाब से ईएसआई में करंट पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल के अगर मैं क्वेश्चंस बताऊं तो
वो करंट भी है लेकिन उनका एक स्टैटिक बैकग्राउंड भी है। जैसे क्वेश्चन आया था इस बार की व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। अब कोई इसको स्टैटिक में बोल सकता है, बट क्योंकि करंट में न्यूज चलती रहती है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मैं इसको करंट में भी गिन सकता हूँ कि करंट आया। सिमिलरली क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। सिमिलरली क्वेश्चन आया कि अब ये प्रॉपर स्टैटिक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन इंडिया सिंस 1990। तो केवल ये 1991 की बात नहीं कर रहा, 1990 से आज तक क्या क्या हुआ सब बता दो। तो अब इसमें एक स्टैटिक एंगल भी है लेकिन एक करंट एंगल भी है कि आप करंट में जोड़ दो, कुछ भी लिख दो, आप लॉ रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स लिख दो, जीएसटी लिख दो, आईबीसी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। सो आई थिंक न्यूज़पेपर्स यहाँ पे हेल्प करते हैं। एंड स्पेशली सर ईएसआई के लिए मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो पीआईबी इज अ मस्ट। पीआईबी से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हो, चाहे जो न्यूज आ रही है, एफटीएस कितने हुए, इंडिया के कितने एफटीएस हैं, तो वो सारी न्यूज पीआईबी से ही आ रही है और कोई सोर्स ही नहीं है पढ़ने का ईएसआई। सो वन थिंग इज पीआईबी, उसको 6 महीने का अच्छे से कर लो आप। हम्म। खुद के नोट्स बना सकते हो, खुद के बनाओ, कोचिंग मटेरियल रेफर कर सकते हो, वो कर लो, आपके डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम आपके ऊपर है, लेकिन पीआईबी करो जरूर से। एंड मेरा तो सर थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड था तो इट हेल्प मी इन फॉर द ईएसआई थिंग। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी आएगा मैं लिख दूंगा। तो प्रिपरेशन मैंने ईएसआई की उतनी अच्छी की नहीं थी, खासतौर से डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। ऑब्जेक्टिव जरूर मैंने पीआईबी बहुत अच्छे से रेफर किया था। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कहूंगा सर पीआईबी रेफर करो 6 महीने के लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स का मैंने खुद के नोट्स बनाए थे सर, क्योंकि जो भी कोचिंग के नोट्स मेरे को थे थोड़े हम्म। बल्कि लग रहे थे। एंड बल्कि के अलावा मेरे को लग रहा था कि इसमें मैं एडिट कैसे करूंगा, जैसे जो रीसेंट चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँ, कैसे लिखूं इसको। तो इसलिए मैंने खुद के नोट्स बनाए। लेकिन स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि मैं डेली 2 गवर्नमेंट स्कीम्स करता था। तो अगर आप डेली 2 गवर्नमेंट स्कीम्स करोगे और टोटल आप मान लो कि 150 गवर्नमेंट स्कीम्स है मैक्स टू मैक्स, तो 75 डेज में आपका गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम्स अगर 6 महीने बाद है तब भी आपने 75 दिन में गवर्नमेंट स्कीम सारी कंप्लीट कर ली। सो आई थिंक खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, लेकिन एक बार में मत करो, डिवाइड करके करो ताकि रिटेन हो पाए गवर्नमेंट स्कीम। एंड सर गवर्नमेंट स्कीम जब भी मेरे को कोई स्कीम समझ में नहीं आती थी तो मैं यूट्यूब पे जाता था। एंड आई थिंक दीक्षा मैम है, उनका जो वो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाती हैं, वो इतने अच्छे से पढ़ाती हैं कि वो पूरा होराइजन कवर हो जाता है। एंड लास्ट में माइंड मैप मिलके उसका जो समरी हो जाता है वो एक दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ये पॉइंट्स हैं एंड ये फैक्ट्स याद करने हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स वैसे मैंने की कि खुद के नोट्स बनाता था। एंड जहाँ पे भी कोई स्कीम समझ नहीं आ रही कि इसका पर्पस क्या है, तो उसके लिए मैं यूट्यूब करता था एंड वहाँ पे जो वीडियो मिला उससे समझ ली, अंडरस्टैंडिंग ले ली। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहे, स्टोरी फॉर्म में आ रहे हैं कि मिस्टर राम इज अ फार्मर, इज ही, दे पूछ लेगा कि देन इज ही एलिजिबल फॉर दिस और नॉट। तो आपको समझना पड़ेगा कि एज लिमिट क्या है, उस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए और थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन भी चाहिए, तो दोनों ही चीज चाहिए। इसके बाद सर गवर्नमेंट स्कीम के बाद सर रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिपोर्ट्स मैं कहूंगा कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ओईसीडी। एंड उसमें भी जो जीडीपी डेटा आता है वो ट्राई करो याद करने का, क्योंकि जीडीपी तो ऑलमोस्ट हर ईयर पूछा है इस साल को छोड़ के। तो जीडीपी पूछते हैं कि जीडीपी प्रोजेक्शन क्या रखा है एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे लास्ट ईयर सर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था एंड उसमें बस एक चीज लिखी हुई थी, हेडक्वार्टर इज इन फ्रांस। तो वो सुनते ही मेरे को पता चल गया कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ओईसीडी। ओईसीडी। हाँ, तो मेरे को और बाकी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो अगर आपके स्टैटिक कंटेंट भी अच्छा है, जैसे फेज 1 में आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो इट विल हेल्प यू समवेयर और दी अदर। तो नॉलेज फैक्ट्स सब बहुत काम आते हैं। Definitely. So, when I talk about, so you have already told us about the what exactly are the importance of the current affairs and how one can approach them. Now, talking about the third important section, that is descriptive English. So, how did you basically allocated the time to the different questions, and what exactly was your order of attempting those questions in the exam? सर मैंने इंग्लिश के लिए इस साल एक टेस्ट सीरीज ली थी। एंड क्योंकि लास्ट ईयर मेरा पेपर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वहां भी खराब हो गया था, तो प्रेस से मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था अच्छे से, वर्ड लिमिट नहीं हो पाई थी। तो इस साल मैंने एक टेस्ट सीरीज ली एंड उसमें मैंने टेस्ट दिए, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मैं हाफ आवर 30 मिनट्स ईच देता हूँ तीनों को, तो दैट इज अ गुड गुड एलोकेशन ऑफ टाइम, कि तीनों को 30-30 मिनट्स दो आप। एंड Hmm. तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा आपका। मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग था, पहले मैं आरसी अटेम्प्ट करता था, क्योंकि आरसी में कुछ भी करना नहीं है आपको, सब कुछ सामने दिया हुआ है, जस्ट आपको लिखना है वहां पे। तो कुछ सोचना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ में जो लिखा है उससे पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिख देना है। सो आरसी पहले करो, उसके बाद प्रेसे कर सकते हो, लास्ट में आप ऐसे कर सकते हो। क्योंकि आरसी तो हो गया आपका, प्रेसे करने में क्या है कि प्रेसे में भी आपको वर्ड लिमिट अधेर करनी पड़ती है, क्योंकि वर्ड लिमिट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है 1/3 होने की वजह से। और लास्ट में ऐसे करता था, क्योंकि ऐसे में अगर आपने
15, 20, 50 वर्ड कम भी लिखे हैं तो कोई ज्यादा फर्क शायद ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना कंटेंट लिखना था एंड आपने थोड़ा सा उसमें कट शॉर्ट कर दिया तो कोई खास फर्क शायद ना पड़े वहां पे। So this was my order of attempting. And talking about how I prepared for English, एक तो सर मैंने टेस्ट सीरीज ली थी इस साल, तो दैट हेल्प मी कि क्योंकि कुछ खास प्रिपरेशन करनी नहीं होती इसकी। इट इज जस्ट कि आप टेस्ट कर लो अपने आप को कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, ये सब बेसिक्स हाइजीन हाइजीन फैक्टर्स इन हाइजीन को ठीक रखोगे तो स्कोर आ जाएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए सर मैंने प्रेसे की बस प्रैक्टिस की थी। एक अमेजोन पे एक बुक थी प्रेसे राइटिंग करके, आई थिंक 150-160 रुपीज की बुक थी, वो मैंने ऑर्डर कर ली थी। एंड उससे मैं उसमें क्वेश्चन दिया होता था और मॉडल आंसर दिया रहता था। तो उससे मैंने 8 से 10 प्रेसे प्रैक्टिस किए थे नोटपैड पे। तो मैं प्रेसे पढ़ता था बुक से, फिर उसको अपने उसमें लिखता था आंसर, एंड फिर उस आंसर को मैं चेक करता था कि उसमें मॉडल आंसर क्या दिया है, ताकि मैं ये देख सकूं कि बेटर मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ अपने प्रेसे को। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर प्रेसे। बाकी आरसी और एसए के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बस मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी इसके लिए। Okay, very good. So I think guys, all the questions about the phase two exam are very much clear to all of you. Now let us move towards the third part of the whole process, that is the interview. So Mr. Utkarsh, how did you prepare for the interview? What exactly were the different sources about RBI notifications, circulars, the RBI website, and any books that you referred during this particular interview phase? And apart from that, any mock interview in which you appeared to make yourself more prepared for the final interview? सर इंटरव्यू स्टेज के लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बायोडेटा। तो मेंस के रिजल्ट के बाद बायोडेटा आ जाता है एंड आपको बायोडेटा फिलअप करना होता है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसको आपको फिलअप करो एंड ट्राई टू, मतलब अपने बारे में जो अच्छी चीजें लिख सकते हो उसको लिखो आप वहां पे। अपने आप को सेल करना है आपको, क्योंकि होता क्या है कि इंटरव्यू पैनल एक दिन में 20 इंटरव्यूज ले रहा है एंड उस उन सबके सामने एक एक टैबलेट रखा हुआ है और उस टैबलेट में आपका बायोडेटा रखा हुआ है। सो आपको वो जज कर रहे हैं आपके बायोडाटा के बेसिस पे कि आपने ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है क्या, आपने वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखा हुआ है, आपने मेडल्स में, स्कॉलरशिप में, लीडरशिप पोजीशन में क्या लिखा रखा हुआ है। जो भी आप लिख रहे हो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड अपना जो बेस्ट सेल्फ है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज में जीएसटी पे एक इवेंट हुआ था, तो वो फर्स्ट प्राइज जीता था। तो मैंने उसको अच्छे से लिखा, उसको शोकेस किया कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछे जीएसटी पे। आई रोट फर्स्ट प्राइज इन कॉलेज इवेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो क्वेश्चन आया मेरे पे जीएसटी का कि क्या इवेंट था, क्या जीता, जीएसटी में क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही मैंने एनएसएस में वॉलंटियर था, लीडर था, तो मैंने उसको अच्छे से लिखा। ऐसे ही मैंने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, तो उसको मैंने अच्छे से लिखा, उस पर क्वेश्चन आया। तो मैं ब्लड डोनर हूँ, बहुत ज्यादा मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है, तो रेगुलर ब्लड डोनर 20+ टाइम्स मैंने लिखा, तो उस पर क्वेश्चन आया, हंसी एक अच्छा लाइट मोमेंट बना। तो बायोडेटा को अपने बहुत अच्छे से लिखो। अपनी हॉबीज हैं तो उसको अच्छे से पोर्ट्रे करो। अपने कुछ इंटरेस्ट है तो उसको शो करो कि अगर आप को कार्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक लिख सकते हो, इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग, यू कैन राइट योर इंटरेस्ट। वो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उनको लीड कर रहे हो कि मेरे को इस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछो। एंड ज्यादातर इंटरव्यू ऐसे ही जाता है, जैसे मेरा इंटरव्यू फुल्ली बायोडेटा फोकस था एंड बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं गया, मोस्टली बायोडेटा फोकस था। तो बायोडेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग। इसके अलावा सर आई थिंक इंटरव्यू के लिए आरबीआई वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आरबीआई वेबसाइट पे जो भी अपडेट आ रहा है, स्पीचेस आ रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं इस बार तो पता नहीं फेज 2 के बाद कम से कम 4 या 5 स्पीचेस आ गई बहुत जल्दी जल्दी। तो हर स्पीच को पढ़ना था, समझना था, उसकी समरी बनानी थी, क्योंकि पूछ रहे थे। तो आरबीआई वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। काफी बार पूछते हैं कि आरबीआई वेबसाइट का लेआउट क्या है, कि आप वेबसाइट खोलोगे तो एक तो क्या दिखेगा आपको, मतलब लेफ्ट साइड क्या दिखेगा, ऊपर क्या दिखेगा। तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखो वेबसाइट को, एनालाइज करो। और खासतौर से अगर आप इंजीनियर हो तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स यू सजेस्ट टू द आरबीआई वेबसाइट। तो अपना एक रखो कि वेबसाइट को अच्छे से आप देख रहे हो, समझ रहे हो। इसके अलावा सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेरेनियल क्वेश्चंस हैं, उनको आपको पता ही होना चाहिए, उसका आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से। जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरबीआई, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था। एंड इसका बहुत ही पर्सनल आंसर बनाओ। इसका आंसर बहुत जेनरिक टाइप मत रखो, अपने स्पेसिफिक रखो कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ आरबीआई। सिमिलरली व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू इन आरबीआई, ये क्वेश्चन है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट डू यू वांट टू ज्वाइन। इसका कोई, इस आंसर का कोई रेलेवेंस नहीं होगा आपके ज्वाइनिंग पे या आपको किस डिपार्टमेंट को मिलेगा, बट दे वांट टू नो कि आपने अगर 30 डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा है आरबीआई में, सो आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा इंटरेस्ट करता है, ज्यादा एक्साइट करता है। सो उसका एक आंसर प्रिपेयर रखो। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन है, उनको प्रिपेयर कर रखो। सिमिलरली
पास्ट ईयर की जो ट्रांसक्रिप्ट, इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट, उसको एनालाइज करो, उसमें देखो कि आपके बैकग्राउंड का कौन बंदा है, कौन बीकॉम से है, कौन बीटेक से है, कौन मैकेनिकल से है, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। तो दैट कैन बी हेल्पफुल, बिकॉज पैनल मेंबर ज्यादातर वही है। तो क्वेश्चंस टेंड टू गेट रिपीटेड, ऐसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, होते हैं रिपीट, बट आप कैसे हैंडल करते हो ये, तो ट्रांसक्रिप्ट भी एनालाइज कर सकते हो आप। तो सर मेजर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन मेरा था, एक तो आरबीआई वेबसाइट था, इसके अलावा एक जो मैंने बताया आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग्स पीडीएफ, वो सर बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि जब आप लिखते हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप किसी से ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस टू फेस हो भी, वो भी 6 लोग बैठे हैं सामने, तो वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिख जाती है बंदे के बोलने से, कि इसको समझ में आ रहा है कि बस ये बोल रहा है। तो उसके लिए समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए वो पीडीएफ पढ़ लेना। एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर्स पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से कुछ भी आ रहा है, क्योंकि वो सीनियर लोग हैं, वो लोग न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं ज्यादातर, तो उनको पता हो रहा है कि क्या चल रहा है, किसी बैंक में कुछ बड़ा इवेंट हो गया, कुछ आरबीआई ने कुछ कर दिया, या उस समय पे एक जैक्सन होल मीटिंग हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आई थिंक दीज थ्री वर माय मेजर सोर्सेज। एंड प्रिपरेशन के लिए सर मैंने एक, क्योंकि जब मैंने एक इंटरव्यू पार्टनर रखा था मेरे लिए, जो इंटरव्यू अपियर कर रही थी, एंड पहले क्या हुआ था कि 15-15 लोगों के, 10-10 लोगों के ग्रुप बन गए, एंड दे डिसाइडेड कि इसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। बट आई थिंक वहां पे कुछ हो नहीं पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता वहां पे। सो ट्राई टू सेलेक्ट वन पर्सन जो आपको लग रहा है कि आप उसके साथ बात कर सकते हो, एंड उनके साथ अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, उनके साथ अपने आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करो, उनसे फीडबैक लो कि मैं ये आंसर लिख रहा हूँ, इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है। एंड जो बोलने की प्रैक्टिस है वो भी आप उनके साथ, पार्टनर के साथ कर सकते हो, ओवर व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम कॉल पे आप हर वीक पे 45 मिनट्स 1 आवर का एक सेशन रखो, एंड ट्राई करो उनसे बात करने का। आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड इस सब के बाद फिर आप आओ मॉक मॉक इंटरव्यूज पे। तो मॉक इंटरव्यूज मैंने आई थिंक 4 या 5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, जिसमें से कि एक एक ऑफलाइन मॉक था, बाकी सारे ऑनलाइन मॉक थे। सो क्योंकि मैंने कभी प्रॉपर फॉर्मल इंटरव्यू में अपियर नहीं हुआ था, इसलिए आई वांटेड टू गिव एन ऑफलाइन मॉक, ताकि मेरे को पूरा प्रॉपर फील आ जाए, मैं सूट पहन के जाऊं, मैं अंदर रूम में घुसूं, मैं बैठूं कि ऐसा होता कैसे है। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड बिसाइड्स दैट, एडुटैप का जो मॉक था एस राजा सर का, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया उन्होंने कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, एंड यू जस्ट हैव टू कीप रीडिंग, अपडेटिंग योरसेल्फ। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। एंड कोई सीनियर आरबीआई ऑफिशियल जो 30-35 साल काम कर चुका है, वो आपको ऐसा फीडबैक दे रहा है, तो बहुत मोटिवेशन फील होता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एंड तो मॉक इंटरव्यूज जरूर देना, एंड उनका जो फीडबैक है उस पर सोचना जरूर, क्योंकि अगर वो कुछ भी आपको फीडबैक दे रहे हैं तो जरूर सोच समझ के दे रहे होंगे। जैसे मेरे को मिलता था फीडबैक, हमेशा हमेशा हर इंटरव्यू में मिला कि यू स्पीक अ बिट फास्ट, आप तेज तेज बोलते हो। अब मेरा थॉट प्रोसेस तेज चल रहा है, तो मैं बोल भी तेज रहा हूँ। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू में गया, तो वहां मैं कॉन्शियस था कि बहुत धीमे बोल रहा है मेरे को, क्योंकि वो सीनियर मेंबर्स हैं, अबव 60+ हैं, तो उनको मुझे सुनने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो मेरे को ये बोल देना कि प्लीज रिपीट, या मैं उनको बोल दूं प्लीज रिपीट, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है सिचुएशन, किसी से आप रिपीट करने को बोल रहे हो तो। सो ट्राई करो कि एक ही बार में जो भी आप बोल रहे हो धीरे धीरे क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ। जो भी फीडबैक मिल रहा है उस पर काम करने की कोशिश करो। आई थिंक दिस इज फॉर इंटरव्यू सर। And very one common question that aspirants have, that see, after all the preparation, still there are times that when you are short of your knowledge to answer some questions. So in that particular kind of situation, is it okay to say no to answer? तो पहली चीज, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग कंप्यूटर्स नहीं है। Mm. सो इट इज वेरी ओके, वेरी नेचुरल टू से नो। एंड ये चीज मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में हुई। तो एक्चुअल इंटरव्यू में मेरे को लगा कि ऑनेस्टी एक चीज होती है, कि आप ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप बोल रहे हो कि नहीं पता है। तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, अ, अ, कि हैज कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो उस पे मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो इसका मैं एग्जांपल ये दूंगा आपको, कि अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें आप नो बोल सकते हो, कि सर मुझे ये फैक्ट नहीं पता है, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, या बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन है या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे आप नो नहीं बोल सकते हो। जैसे आपसे अगर पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक द बैंक प्राइवेटाइजेशन शुड बी डन और नॉट, तो आप वहां नो नहीं बोल दोगे कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। वहां पे आपको ओपिनियन अपनी देनी पड़ेगी। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में नो बोलना इज परफेक्टली फाइन, नो इशूज। एनालिटिकल क्वेश्चंस में या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में नो आप नहीं बोल सकते हो, आपको अपनी ओपिनियन देनी पड़ेगी। अगर आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, उसका मतलब यू आर नॉट अ थिंकिंग पर्सन, तो वो बहुत ही बैडली रिफ्लेक्ट होगा। तो ओपिनियन बेस्ड में ओपिनियन दो अपनी। एंड सर,
मेरे को 2 बार एक्चुअल इंटरव्यू में ये हुआ कि मुझे पता था बट आई वाज नॉट 100% श्योर। सो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे परमिशन मांगी कि सर आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर बट इफ यू अलाउ मी आई कैन मेक एन एजुकेटेड गेस। एंड सर मैंने ये चीज 2 बार बोली इंटरव्यू में। एंड दोनों बार जो दो दो अलग अलग पैनल मेंबर्स थे, दोनों ने बहुत ही स्वीटली पोलाइटली बोला यस प्लीज गो अहेड। एंड मैंने जो फिर आंसर दिया वो सही आंसर था। मुझे पता था कि ऑलमोस्ट सही है, बस 1% डाउट था। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया, मैंने परमिशन लेके। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आ रही है कि आपको पता है बस श्योर नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो कि परमिशन लेके आप गेस वर्क कर सकते हो। Very important point mentioned here, that if there is such kind of situation, you can say no, and you can also basically take their permission as well if you want to guess. So very good point. So now let's talk about the psychometric test, that what exactly it is, and what exactly are the different points that you must consider about that test. सर मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा साइकोमेट्रिक, बट आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अभी तक तो पता भी नहीं कि उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ भी कि कुछ नहीं हुआ। बट आई थिंक कुछ इंटरव्यूज में बच्चों ने बोला कि उनके पास शायद उसका रिजल्ट था, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एनालाइज कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं क्या वो मैच हो रहे हैं जो एक्चुअल कैंडिडेट है उससे कि नहीं। बट आई थिंक टेस्ट देते वक्त एक तो कंप्यूटर पे वो टेस्ट चल नहीं रहा था, तो फिर पता चला कि वो मोबाइल में टेस्ट हो रहा है। तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा कि वो मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट अपने मोबाइल पे दे रहा हूँ, बट मोबाइल से बहुत ही स्मूथली हो गया। एंड टोटल 110 क्वेश्चन रहते हैं, 110। एंड हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन रहते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। ये 5 कैटेगरी रहती हैं। एंड हर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि डू यू लाइक टू प्लान थिंग्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, do you like to plan before doing anything, how organized are you, do you like to hang out with friends। मतलब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। आप जो हो आप पोस्ट में लिख दो, उसका कोई इंपैक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं, फ्यूचर में कुछ होगा तो, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि क्या पूछ लेंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। एंड दे जस्ट ट्राइंग टू सी कि आप हो क्या। तो जो आप हो वो आप बता दो। बहुत ज्यादा बट मैंने ट्राई किया था कि मैं एक्सट्रीम में ना जाऊं, जैसे मैंने किसी भी ऑप्शन में स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं मार्क किया, बिकॉज आई थिंक मतलब थोड़ी बैलेंस पर्सनालिटी हो तो बेटर है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फील करते हो तो अग्री पे चला गया, मैं स्ट्रांगली की साइड नहीं गया। सो मेरा वही था, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, इन्हीं 3 ऑप्शंस में मैं कर रहा था, स्ट्रांगली की साइड में नहीं गया। बाकी इट इज मतलब बहुत ज्यादा उसका लोड मत लेना, बहुत ही इजी पेपर होता है। एंड आई थिंक 5 मिनट्स में 5 या 6 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि इट हार्डली टेक्स 2 और 3 सेकेंड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। पढ़ो बस आंसर कर दो, तो बहुत ज्यादा इट इज नॉट वेरी रिलेवेंट, बस just it's a formality, just do it as a formality। Okay. So all the questions related to the recruitment cycle for RBI Grade B exam have been answered in a very beautiful manner by Mr. Utkarsh. So sir, one final question to you, that how did EduTab helped you in your journey of becoming the RBI Grade B officer? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, एंड दोनों ही साल मैंने कोचिंग ली। एंड एडुटैप वाज वन ऑफ द कोचिंग्स व्हिच आई टुक। एंड कंटेंट वाइज तो काफी अच्छा मटेरियल है। सो जब भी मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं पहले कंटेंट रेफर करता था, उसमें मुझे को जो रेलेवेंट लगा मैंने वो पढ़ लिया। इसके बाद उसी टॉपिक वाइज, क्योंकि एमसीक्यूज दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज कर लोगे तो आपका वहीं पे एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया या वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। तो वो बहुत अच्छा रहता था। तो एमसीक्यू सॉल्व हो गए टॉपिक वाइज, वहीं पे दिए हुए हैं। एंड फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, प्लस वहीं पे आंसर भी दिए हुए हैं, मॉडल आंसर। सो वहां से भी आप देख सकते हो। तो दैट वेज एडुटैप कोर्स वाज वेरी हेल्पफुल। बिसाइड्स दैट मैंने बताया कि दिशा मैम के गवर्नमेंट स्कीम्स वीडियोस देखता था मैं यूट्यूब पे, प्लस कृतिका मैम के फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, क्योंकि काफी बार कुछ न्यूज रहती है, जैसे कि लास्ट टाइम मेरे को याद है माइक्रो फाइनेंस में नए रेगुलेशंस आए थे। एंड वो Yes. रेगुलेशंस मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, मतलब पेपर में भी बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही। फिर मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, तो कृतिका मैम का वीडियो आया, मैंने देखा। एंड बहुत क्लैरिटी आ गई कि अच्छा माइक्रो फाइनेंस में क्या इशूज हैं और रेगुलेशंस उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं। सो आई थिंक वहां पे भी हेल्प किया। बिसाइड्स दैट अंशित सर के जो स्ट्रैटेजीज वीडियो रहते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पे कि अच्छा ये करो वो करो, इस पे फोकस ज्यादा करो, इस पे कम फोकस करो, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट। कि और जब आप फुल टाइम एस्पिरेंट रहते हो तो कोई अगर आपको बताता रहता है ना बीच बीच में, जो कि बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेन कर चुका है, मेंटर कर चुका है लोगों को, सो आप उस पर ट्रस्ट रखते हो, क्रेडिबिलिटी है। सो उनकी जो बात होती है वो आई टोक इट वेरी सीरियसली, कि अगर ये कह रहे हैं कि फेज 1 में यहाँ 3 महीने पर फोकस करो, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप 3 महीने में फोकस करो, क्योंकि दिमाग ही तो है। आप 6 महीने पढ़ के रिटेन कहां से करोगे। तो जो भी वो बोल रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो। एंड वो जो भी बोलेंगे वो एक्सपीरियंस से बोलेंगे, आपके आपके बेनिफिट के लिए बोलेंगे। सो दैट वाज वन थिंग।
एंड बिसाइड्स दैट सर, मैंने जितनी टॉपर स्टॉक हो सकती है सारी टॉपर हम्म, स्टॉक देख चुका हूँ मैं। एडुटैप पे जितने टॉपर्स आए सबका 2 साल का देख चुका हूँ। बिकॉज आप देखते रहते हो ना कि कुछ नया मिल जाए, कुछ एडिशनल मिल जाए, जिससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई भी सीक्रेट कुछ नहीं होता, सीक्रेट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट सिलेबस एंड प्रैक्टिस। सिलेबस को सामने रखो, सिलेबस कंप्लीट करो एंड प्रैक्टिस करो हर स्टेज की। किसी भी स्टेज को लाइटली मत लेना कि मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो क्वांट्स निकाल ही लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर स्टेज को रिस्पेक्ट करना है, उसका जो डिजर्व करता है वो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, हर स्टेज की रिस्पेक्ट करोगे तभी आप फाइनली जाके सेलेक्ट हो जाओगे। और प्रैक्टिस करते रहो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस का मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एवरीथिंग। मतलब प्रैक्टिस तो, प्रैक्टिस इज द की। एंड कोई सीक्रेट नहीं है। आप सोचो कि कोई सीक्रेट मटेरियल, कोई बुक आ जाएगी ऐसी, उससे पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस एंड अल्टीमेटली सेल्फ बिलीफ। क्योंकि एग्जाम प्रोसेस ऑल्दो 6 महीने में कवर हो जाता है, लेकिन 6 महीने भी बहुत ज्यादा लगते हैं कि अब रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। तो वहां पे सेल्फ बिलीफ ही काम आता है कि नहीं मैंने अच्छा किया है, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। इंटरव्यू स्टेज में सर 2 महीने का गैप था मेरा, तो लगता था कि क्या पूछ लेंगे इंटरव्यू में, मैं बता पाऊंगा कि नहीं, मैं कहीं नर्वस ना हो जाऊं, इतने ज्यादा मेंबर्स होंगे, पैनल मेंबर्स होंगे। फिर लोग इतने र्यूमर्स उड़ा देते हैं कि चेयरमैन सर ऐसे बोलते हैं या दूसरे पैनल मेंबर ऐसे बोलते हैं। तो ये सब र्यूमर्स होते हैं, आपको वो आपके हिसाब से। जैसे मेरा सर, मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब इतने स्माइलिंग, इतने अच्छे लोग हैं, हम्म, नहीं पता तो कोई कोई बात नहीं बोल दे रहे हैं, हिंदी में भी बीच में जोक कर ले रहे हैं कि हम्म, अरे भाई ये कैसे कर लेते हो आप, फिर 5 साल से कर क्या रहे थे आप, ग्रेजुएशन कर लिया 17 में, कर क्या रहे हो 5 साल से। तो मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, दे आर देयर, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, इट इज देयर ड्यूटी टू इंटरव्यू यू, टू आस्क यू क्वेश्चंस। आप अपनी ड्यूटी करो कि आप अच्छे से उसको फॉर्मली आंसर करके, अच्छे से, कामली, कॉन्फिडेंटली एंड ऑनेस्टी के साथ, कहीं पे भी झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। तो एडुटैप वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज सर, कोई मेंटर रहता है तो यू फील कि अच्छा जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर हम्म। रहा हूँ, तो आपको उस पर फेथ रहता है। सो आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। So as you have mentioned that you have already studied the course for the past 2 years and you have also take the mock interview session of the EduTap as well. So really, we as the EduTap team helping you in your journey, we are really happy to hear that. So I think, guys, all the questions have been answered in a very beautiful manner by Mr. Utkarsh here, that what you should do in all the recruitment cycles of this exam. And you really believe that all these answers which he has mentioned here and which he has given to us, they are really going to help you in your journey as well to achieving your dream job of becoming the RBI Grade B officer. So, sir, thank you so much for joining us on our platform. And we, थैंक यू सर। on the whole behalf of the students as well as the EduTap team, we would like to congratulate you and wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू सर, थैंक यू।